Okay, students, in operators of C language topic, in last lecture we have seen another type of operator named as logical operators. Before we have seen arithmetic operator which are plus, minus, multiplication, division, and modulus operator. In assignment operator, we have seen two types of operators which are basic assignment operator, single, equal, and these type of operators are called compound assignment operator, which is combined together with the arithmetic operator. Multiply equal, divide equal, and modulus equal. So two types of operators in assignment operator. The one is called basic assignment operator and the other ones are known as compound assignment operator. After this, another type of operators which is called relational operators, and we have seen there are many types in which we can say the operator greater than operator, less than operator, greater than or equal to operator, less than or equal to operator, not equal to operator, and double equal to operator. So these operators, these types of operators we have already discussed and learned that how they are working and how they are used in our C programming language. Okay. Then yesterday in last lecture we have seen logical operator, in which there are three types of operators used as logical operator. The one is called AND operator, which is used as double AND percent. The other one is OR operator, which is used as uh, double lines, and NOT operator, which is used as exclamation operator, this sign. Okay, so there are three logical operators: AND, OR, and NOT. Now today's lecture is about increment and decrement operators. As you know that increment is used to increase something. You already heard the word increment as if you say increment in something, you mean increase in something. Increment in salaries, increment in bonus, increment is any in anything is you can say is increase in that salary, increase in that amount, increase in that figure. Okay, and decrement is the opposite of increment, which is known as to decrease something. Okay, these types of operators we will have to see today and learn that how these types of operators are used and what type of operators are involved in these increment and decrement operators. Let's move to the topic. Increment and decrement operators. There are two types of increment and decrement operator. One is called increment operator and the other one is called decrement operator. Increment means to increase something and decrement means to decrease something, to make the value lower and to make the value more or increased. Okay, increment operators is plus plus and decrement operator is minus minus. These are defined in figure. You can see
The plus plus operator is used as increment operator, which is doing one increase in any value. So if you say a plus plus double plus, then what it means? It will increase a by 1. If you have a is equal to 5, then what will be the answer of this? A is equal to 6, because you have increased 1 in the value of a. So it means you have incremented the value of a by 1. Is it clear to all of you? The increment operator is clear? Please, you guys must answer me. That's otherwise I cannot move forward. Is it clear, the increment operator, how increment operator we can Yes, sir. and what is it used for? Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay. If any confusion, so please raise your hand and ask me the question that why is it used and why we are using and what is this operator and how we can use it. So any type of question you can ask. Okay. Balash Mari. सर ये एक दफा थोड़ा फिर शॉर्ट अल्फाजों में सर एक्सप्लेन ठीक है, ठीक है। अच्छा, इंक्रीमेंट लफ्ज जो होता है वो उसकी मीनिंग है कुछ चीज इंक्रीज करना, ज्यादा करना, और डिक्रीमेंट उसकी ऑपोजिट मीनिंग होती है, यानी कुछ चीज या कुछ नंबर जो है उसमें कमी करना, कम करना, डिक्रीज करना। इंक्रीज और डिक्रीज का वर्ड भी आपने सुना होगा, यही वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही होते हैं। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास सी में ये वाला ऑपरेटर होता है, डबल प्लस हम यूज करते हैं, और डिक्रीमेंट में डबल माइनस यूज करते हैं। तो ये एक ही ऑपरेंड पे काम करता है। ऑपरेंड यानी ये ए जो है ये ऑपरेंड कहलाता है और ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम a प्लस प्लस बोलेंगे तो a की अगर कोई भी वैल्यू होगी, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 7 हो, तो उसमें ये क्या करता है, ये एक जमा कर लेता है, इंक्रीज कर देता है, एक सिर्फ 1 इंक्रीज कर देता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, जो भी वैल्यू है इसकी उसमें 1 ऐड कर देता है। प्लस प्लस का मतलब यही है, जहां पे भी प्लस प्लस यूज होगा उसका मतलब क्या होगा, 1 ऐड करो उसमें। ठीक है, तो अगर फर्ज करो हमारे पास a की वैल्यू 5 है या 6 है या 7 है, कोई भी वैल्यू है, फर्ज करो 6 है, 6 है, तो a प्लस प्लस के बाद हमारी a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 7 बन जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 6 थी तो हमने उसमें एक ऐड कर लिया, तो अभी a की वैल्यू क्या बन गई, 7 बन गई। ठीक है, अभी इसका ऑपोजिट अगर आप देखो, a की वैल्यू 6 है और अगर आपने a डिक्रीमेंट कर दिया यानी माइनस माइनस कर दिया, माइनस माइनस साथ में लिखते हैं, एक ही ऑपरेटर होता है ये, और इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है, डिक्रीमेंट बाय 1। तो अभी हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी a की वैल्यू हमारे पास 6 थी और एक माइनस कर दिया हमने, तो क्या बन गई, 5 बन गई। क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? बलाश मरी, आपने क्वेश्चन पूछा था अभी। यस सर, क्लियर है सर। अच्छा, इसी तरह कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क, otherwise you can make burden for yourself, because a lot of new things you will see and these things you will confuse you. Okay, अभी हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी हमें सामने आता है, हम देख सकते हैं प्लस प्लस
उस वेरिएबल के आगे लग जाता है, और प्लस प्लस कभी कभी हमने पीछे यूज किया है, यानी उससे पीछे, उसके बाद, वेरिएबल के बाद हमने यूज किया, और ये वेरिएबल से पहले यूज किया, तो ये समथिंग डिफरेंट चीजें होती है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर कुछ डिफरेंट आता है, ठीक है। ये दोनों जो है ये इक्विवेलेंट है, बराबर है किस चीज के? अभी ये a प्लस प्लस मैंने लिखा, तो a प्लस प्लस का मतलब है a की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 6 थी, ठीक है। तो 6 में 1 जमा करो, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हमारे पास a एक वेरिएबल है, और हम बोलते हैं कि a की वैल्यू क्या करो? 1 ज्यादा करो। तो पहले जो a की वैल्यू है उसमें 1 जमा करो, तो इस तरह लिखा ना हमने, तो ये 1 इंक्रीज हो जाएगा ना। अभी a की वैल्यू क्या है? 6, ऑलरेडी इसकी 6 वैल्यू है, और प्लस 1 जब हो जाता है तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी? हमारे पास a की वैल्यू 7 बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज है इसको हमने शॉर्ट करके इस तरह लिखा, देखो कितना शॉर्ट हो गया, ठीक है। a प्लस प्लस हमने लिखा, और इसको हमने हमने लास्ट एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी पढ़ा था, उस तरह भी लिख सकते हैं। और वो क्या था? अगर दोनों a है तो उसमें से एक a ले लो, और ये क्या है? प्लस है और इक्वल है, और हमने क्या इसमें ऐड किया? 1 ऐड किया, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर है? यानी ये और ये तीनों जो चीज हैं ये एक ही रिजल्ट आपको देता है, लेकिन हम चूंकि प्रोग्रामिंग में चीजें शॉर्ट करते रहते हैं और आसानियां बनाते हैं, तो ये आसान हो जाता है। अगर इंक्रीमेंट करना है तो सिर्फ a प्लस प्लस कर दो, ठीक है। ये सिंगल एक जमा करने के लिए, एक डिजिट जमा करने के लिए, एक डिजिट ज्यादा करने के लिए ये ऑपरेटर यूज होता है a प्लस प्लस, ठीक है। तो इसी तरह माइनस का भी है। अगर हम कहते हैं कि a माइनस माइनस, यानी a की जो वैल्यू है उसको एक कम करो, एक माइनस करो, ठीक है। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि a जो आंसर होगा वो क्या होगा? a में एक कम, a माइनस 1, ठीक है। तो ये चीज और ये चीज दोनों हमें आंसर सेम दे रही है, क्योंकि अगर a की वैल्यू 6 है तो 6 माइनस 1, अभी a की वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 बन जाएगी, ठीक है। और इसका मतलब भी यही है कि a की जो वैल्यू है 6 है, तो माइनस माइनस का मतलब है यानी 6 से एक कम करो, डिक्रीज करो, तो वो 5 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये हम सेम इसको लिख सकते हैं, सेम रिजल्ट हमें दे रहा है, एक ही चीज है, ठीक है। और वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में अगर आप लिखना चाहते हो तो 2 a यूज हुए हैं, एक a हमने ये लिखा, और ये माइनस और इक्वल, माइनस और इक्वल, और क्या माइनस किया हमने? 1, तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने लिखा, ठीक है। तो ये आपको ये बता रहा है कि ये दोनों चीजें सेम है, ये तीनों चीजें, चाहे आप n प्लस प्लस लिखो, चाहे n इज इक्वल टू n प्लस 1 लिखो, या चाहे n प्लस इक्वल 1 लिखो, तीनों का रिजल्ट सेम है, ठीक है। और डिक्रीमेंट में भी आप देख सकते हो n इज इक्वल टू n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और n माइनस इक्वल 1 भी लिख सकते हैं, जो कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा ये है कि क्या कहते हैं? व्हेन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल, ये यहाँ पे बिफोर लिखा गया है और यहाँ पे आफ्टर द वेरिएबल लिखा गया है। इट इज नोन एज क्या?
प्रीफिक्स, प्री बोलते हैं पहले और पोस्ट बोलते हैं बाद में, ठीक है। तो इसको प्रीफिक्स बोलते हैं और इसको पोस्ट फिक्स बोलते हैं। एंड व्हेन इट इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल इट इज नोन एज पोस्ट फिक्स, ठीक है। तो अगर आपने पहले लिखा हो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल से पहले लिखा हो तो व्हाट इट इज known as, it is known as prefix. And if you have written the increment of operator after the variable, then it is known as postfix. Simple English, prefix and postfix, ठीक है। अच्छा, in certain situations बाज़ औक़ात क्या होता है कि प्लस प्लस n and n प्लस प्लस have different effect. ये मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट होते हैं कई जगहों पे। क्यों डिफरेंट होते हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। This is because plus plus n increments n before using its value, whereas n plus plus increments n after it is used. ये बिफोर और आफ्टर की आपको एक एग्जाम्पल से समझ आएगी। इस तरह कि अगर a की वैल्यू हम लिख लेते हैं प्लस प्लस n प्रीफिक्स में, यानी ये प्लस प्लस n वेरिएबल से पहले हमने लिखा, और हम फिर कहते हैं कि a इज इक्वल टू पोस्ट फिक्स में हम लिख लेते हैं n प्लस प्लस, यानी ये इंक्रीमेंट जो है ये हमने वेरिएबल के बाद लिखा। तो अभी इनको वैल्यू दे दो तो ये किस तरह आप कैलकुलेट करोगे। सपोज n हैज द वैल्यू 3, हमारे पास n किसके बराबर है, 3 के बराबर है। द स्टेटमेंट दिस वन विल फर्स्ट इंक्रीमेंट n, वो पहले क्या करेगा, ये n की वैल्यू इंक्रीज करेगा प्लस प्लस n, क्योंकि इंक्रीमेंट पहले आता है, ठीक है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने पहले लगाया है तो ये क्या करेगा, फर्स्ट इंक्रीमेंट n एंड देन असाइंस द वैल्यू 4 टू a। समझ आ गई आपको। पहले इसको इंक्रीमेंट किया, n हमारे पास 3 था तो 3 को जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, ये असाइन करेंगे a को। अभी a की वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी। लेकिन बाज़ औकात अगर हमने इस तरह यूज किया तो ये क्या करेगा, हमारे पास n पहले आ रहा है, इक्वल के बाद n पहले आ रहा है, तो n की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये क्या करता है, विल फर्स्ट असाइन द वैल्यू 3 टू a। जो 3 है पहले वो a को असाइन कर देगा एंड देन इंक्रीमेंट्स n टू 4। पहले असाइनमेंट का काम हो जाएगा और फिर इंक्रीमेंट का काम होगा, ठीक है। इन बोथ केसेस n हैज द वैल्यू 4, द सेम रूल अप्लाइज टू माइनस माइनस n एंड n माइनस माइनस एज वेल। ये अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो ये बाद में प्रोग्रामिंग में आपको क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू रिजल्ट आपका क्या निकलता है। लेकिन सिर्फ ये जहन में रखे कि प्लस प्लस n और n प्लस प्लस में सिर्फ ये फर्क है कि इसमें इंक्रीमेंटेशन पहले होती है, क्योंकि इक्वल के बाद सबसे पहले उसको प्लस प्लस मिल रहा है। तो प्लस प्लस का मतलब है पहले इंक्रीमेंट करो n को फिर उसको असाइन करो, और इसका मतलब है कि पहले n को असाइन करो a को और फिर उसको इंक्रीमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ तक काफी है आपके लिए कि बस ये इसमें ये फर्क है कि इसमें पहले असाइनमेंट होती है और यहाँ पे पहले इंक्रीमेंटेशन और फिर असाइनमेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन बाद में हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का टॉपिक था जो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो आप प्लीज आस्क द क्वेश्चन, रेज योर हैंड एंड आस्क एनी कंफ्यूजन दैट यू मे हैव। शाबाश। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में तो आप वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्ज करें आपने a की वैल्यू डिफाइन की 7। मैं क्वेश्चन करता हूं किन से, अब्बास खटक से। अब्बास खटक,
Can you hear me? Abbas Khatak, can you hear me? अब्बास खटक, आप मुझे सुन रहे हो? अच्छा, व्याल भट्ट, कैन यू हेयर मी? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या आप सब मुझे सुन रहे हो? अब्बास खटक, बलाश मरी, व्याल भट्ट, मोहम्मद अली, उमर शहबाज, वेयर आर यू पीपल? ओके सर, समझ आ गई। Okay, Balash Mari has answered. And Abbas Khatak, Albert, Muhammad Ali, Umar Shehbaz, where are you? Answer me. Raise your hand or speak Yes, some. sir. Yes, sir. Okay, Abbas Khatak, I'm asking you a question. Look at this. You have the value of A is 7. Okay. So A is equal to 7. And if I say that A minus minus, then what will be the value of A now? Abbas Khatak should answer me. Yes, sir. What will be the value of A now? Abbas Khatak, have you seen the question? This is the question. A is equal to 7 and A minus minus. Then what will be A now? 6. 6. Correct. ठीक है, यानी आपने A डिक्रीमेंट कर दिया. Yes, sir. Okay. Now the question for Vialbert. If A is equal to 9 and I have asked you that A plus plus, then what will be the answer of A? 10 sir, 10. 10. Simple. Just you have increased 1 in the value of A. Okay. If anything, any value of A after incrementation, it becomes 1 increase in that value. Clear? और जस्ट इस टॉपिक में हमने देखा कि अगर हम A प्लस प्लस लिखते हैं तो इसको कौन सा फिक्स बोलते हैं, यानी ये इंक्रीमेंट जो बाद में हमने लगाया इस वेरिएबल के, तो इसको बाद में बोलते हैं यानी पोस्ट फिक्स, इसको पोस्ट फिक्स बोलते हैं. और अगर हम इस तरह लिखें इसको प्लस प्लस A, तो ये क्या है? प्री, यानी हमने पहले लिखा, वेरिएबल के पहले लिखा, तो इसको प्री फिक्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये पोस्ट फिक्स नोटेशन कहलाती है और ये प्री फिक्स नोटेशन कहलाती है. ठीक है चीज सेम, लेकिन बाज़ औक़ात ये आपको वैल्यू डिफरेंट देती है, क्योंकि इसमें ए पहले आ रहा है और इसमें ए बाद में आ रहा है. ठीक है, तो इसमें इंक्रीमेंटेशन पहले आ रही है और इनमें वेरिएबल पहले आ रहा है. तो अगर किसी चीज को आप ये वैल्यू दे रहे हो, यानी बी को अगर ये वैल्यू दे रहे हो, तो ये क्या करेगा? ये पहले इस ए की जो वैल्यू है, अगर ए की वैल्यू 9 है तो 9 को बी को असाइन कर देगा. पहले बी की वैल्यू 9 हो जाएगी और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी? 10 हो जाएगी, क्योंकि पहले वो इंक्रीमेंट करेगा, बाद में असाइन करेगा. ये पहले असाइन करेगा और फिर बाद में इसको इंक्रीमेंट करेगा. तो इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ पे बी की आपकी वैल्यू 9 रह जाएगी और यहाँ पे आपकी बी की वैल्यू 10 हो जाएगी. ठीक है, तो ये डिफरेंट होता है. ये आपको प्रोग्रामिंग जब प्रैक्टिकल करोगे आपको समझ आएगी. लेकिन आपने जस्ट अभी याद रखना है प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स किसे कहते हैं.
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की आपको समझ आ गई, और प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स की भी आपको समझ आनी चाहिए कि प्रीफिक्स किसे कहते हैं और पोस्ट फिक्स नोटेशन किसे कहते हैं, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट क्या है, n प्लस प्लस को हम n इज इक्वल टू n प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या n प्लस इक्वल 1 भी लिख सकते हैं। ये तीनों जो चीजें हैं ये सेम है, रिजल्ट आपको सेम मिल रहा है, ठीक है। तो आपको जो भी आसान होगा वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये आसानी के लिए इस तरह की नोटेशन यूज करते हैं, और इस ऑपरेटर को क्या नाम देते हैं, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर नाम देते हैं, और साथ में दूसरा डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसका अपोजिट होता है, ठीक है। आई मस्ट मार्क द रिजल्ट, द अटेंडेंस ऑफ you guys. Abbas Khattak has already attended, 18. Balash Murray has came, so today is 18. And Vyal Bhatt is also present, so 18. And Muhammad Ali Umar Shehbaz is marked already. Okay. So with this topic, we have completed the basic operators, which are these: arithmetic operators, assignment operators, relational operators, logical operators, and increment and decrement operators, ठीक है। ये हमने सीख लिए कि ऑपरेटर्स जो हम यूज़ करने जा रहे हैं सी में, प्रोग्रामिंग में, तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक हमारे जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं, 5, प्लस माइनस इक्वल, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस। असाइनमेंट में दो किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं, एक सिंगल इक्वल एंड दूसरे जो 5 इक्वल साइन के साथ वो 5 ऑपरेटर्स हम इकट्ठे करके यूज करते हैं, उनको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसको एक को बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरे सारों को कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और रिलेशनल में जो हमारे पास दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स में देखे। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 किस्म के ऑपरेटर्स थे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट, ठीक है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में हमारे पास 2 किस्म के ऑपरेटर्स हैं। इंक्रीमेंट को बोलते हैं प्लस प्लस और डिक्रीमेंट को बोलते हैं माइनस माइनस, ठीक है। और इनमें भी 2 किस्म के टाइप्स हैं, यानी प्रीफिक्स, एक को प्रीफिक्स बोलते हैं और एक को पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स तब बोलते हैं जब हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को पहले यूज करें वेरिएबल के, और पोस्ट फिक्स तब उसको बोलते हैं जब हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के बाद यूज करें, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा और ये कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो टॉपिक है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और वो है डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल ऑपरेटर। ये ऑलरेडी हमने एक एग्जांपल देखी भी है, लेकिन फिर भी आपको समझाएंगे। तो अभी क्लास की टाइमिंग ख़त्म हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।